اس حوالے سے میں آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ جو الیکشن ہے یہ خاص قومی ایجنڈے پر لڑے جا رہے ہیں. ایک بیانیہ ہمارا ہے اور ایک بیانیہ بعض دوسرے حضرات کا بھی ہے. اس بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کی وہ قوتیں تکمیل چاہتی ہیں، اور مجھے اس بات کا خطرہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب از خود یا ان کی حکومت اس پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت اہلیت ان میں موجود نہیں ہے. 5 اگست کو 2019 کو مودی نے جو ایک UN ریزولوشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، بلیرنٹ وائلیشن تھی وہ UN ریزولوشنز کی. اس حوالے سے پاکستان کی حکومت نہ پاکستان کے عوام کو ساتھ لے کر چل سکی، نہ سیز فائر لائن کی جانب رہنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکی، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پر وہ آمادہ کر سکی کہ ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اس کی کمٹمنٹ تھی سیکورٹی کونسل کے اندر، اس سے جو ہے وہ اس نے فرار حاصل کیا. مجھے اس کا افسوس ہے اس بات کا. میں جنرل اسمبلی پہ تقریر کر رہا کافی نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو جو دنیا کے پاور سینٹرز ہیں اس میں جانا تھا. ہم نے متعدد بار وہ آئے مظفر آباد تشریف لائے، ان سے کہا بھی اندر جو اسپیکر چیمبر میں جو میٹنگ ہوتی رہی اس میں ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اس وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی حریت کانفرنس بھی جو آزاد شہر میں مقیم ہے یہ اپنی سفارشات مرتب کر کے وزارت خارجہ کو دیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. میں آزاد شہر کی سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں. یہاں تشریف لائے کشمیر ہاؤس میں ہم نے 11 نکاتی ان کو ایک وے فارورڈ دیا. ہم وزارت خارجہ پہ گئے، وزیر خارجہ صاحب کے پاس ہم حاضر ہوئے، میٹنگ کی، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. ابھی اگر آپ کو یاد ہو وہ کلپ کا آپ کو یاد ہوگا جس میں عمران خان صاحب نے آزاد شہر کا جھنڈا نہیں اٹھایا اپنے ہاتھ سے. وہ یہاں جو وہ کر رہے تھے وہ جو جمعے کے دن جو انہوں نے ایک مذاق کیا تھا قوم کے ساتھ. اب کل نیشنل سیکورٹی کی یہاں پر ایک پالیسی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے. میں اس پہ نہیں جا رہا. کس لیے نہیں جا رہا کہ جس شخص کی حکومت نے میری ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تبدیل کر دیا، یعنی جو نقشہ ہم نے دیا تھا 1947-48 میں، اس نے یک طرفہ طور پر اس کو تبدیل کر دیا. کیا ڈیورل لائن پر آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ڈیورل لائن پر آپ نے خاردار تارے لگا کے پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کیا ہے تو ریاست جموں کشمیر کا محفوظ نہیں کر سکتے. چلیے اس کو آزادی نہ دلا سکیں آپ کی حکومت، لیکن ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تو محفوظ کرے نا. میں نے تو اپنے دفتر میں ریاست جموں کشمیر کا وہی نقشہ لگایا جو انگریز کے زمانے سے تھا، جو پاکستان نے پیش کیا. اس سے بڑی زیادتی کشمیریوں کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک شخص کو اختیار ہی نہیں ہے اس کو. وہ کون ہے وہ جو میری ریاست کا جو 84,000 مربع میل کا نقشہ جو تبدیل کر دے وقتی مفاد کی خاطر پر اب ڈیورل لینڈ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اس سے بڑی زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ. اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جب بھی آپ نے اذان سنی ہے یہاں سامنے مسجد میں ہوئی ہے ظہر کی نماز، مؤذن نے اذان دی ہے کہ آؤ اللہ کے گھر میں، اس پر جھنڈا کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجھے زبردستی لے جائے. یہ ہم نے خود جانا ہے. میں بحیثیت مؤذن یہ کہہ رہا ہوں، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہہ رہا ہوں. میں نے جو پہلے بات کی تھی، مجھے پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بیانی کے ساتھ ہیں آپ. لیکن اس حکومت پر مجھے کوئی یقین نہیں ہے جس کا وزیر خارجہ کہتا ہے وہ مسئلہ کشمیر کا میری جیب میں. بھائی آپ کون ہیں میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ آپ جاؤ ادھر کیا نام ہے ملتان کی، آپ اس کے 6 نقشے بنائیں. آپ نہیں بنا سکتے میرا نقشہ. آپ کون ہیں؟ آپ کو کس آپ نے توہین کی ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے بسنے والے دوسری طرف کے لوگوں کی. میری جن 10,000 ماؤں بہنوں کی عصمت داری ہوئی ہے، 11,000 ہاف وڈو بیٹھی ہیں. یہ میری بہن جو ہے یہ کشمیر سے آئی ہوئی ہے. یہ ابھی ریسنٹلی یہ یہاں پر ہمارے جو
जम्मू के और वैली के जो माजरीन की जो हमारी सीटें पाकिस्तान में मुकीम है, 2.25 लाख आदमी जम्मू में शहीद हुआ 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 1947 तक। आज 2.25 लाख जो है वो शहीद हो चुके, घरों को उड़ाया गया, उनको इक़्तिसादी तौर पर तबाह कर दिया गया, अनमार्क रेप सैकड़ों की तादाद में। मेरे बेटे और बेटियों की आंखों की रोशनी छीन ली गई है पैलेट गन से इस्तेमाल करके। लोगों को जो है वो अपने ड्रैकोनियन लॉज के तहत गिरफ्तार किया। एक गैर मुल्क हिंदुस्तान जिस तरह वो गंटोमानो बे है उसी तरह से तिहाड़ जेल है। यानी ये कह रहा है मैं कश्मीर का सफीर हूँ। अच्छा सफीर है कश्मीर का? यानी मोदी को उसको कहा, ट्रम्प को, आप उसने कहा जी मैं आपके साथ से कराऊंगा। सबसे बड़ी हमाकत ये होगी कि कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान पाकिस्तान मान जाए कि वो अमेरिका के साथ से करवाएगा, वो सारा वो उसके साथ जाएगा। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तक़सीम कश्मीर पर कारफरमा, वहाँ से हिंदुस्तान ने यह काम किया, यहाँ से उन्होंने यूनिलैटरली इसको जो है वो गिलगित को जो अपना सूबा बना लिया और ख़ुद पाकिस्तान गया, खुद खिलाफ वर्जी की यूएन रेजोल्यूशन की, सिक्योरिटी काउंसिल की खिलाफ वर्जी की, 1957 की करारदाद की। लोगों के शायद पता ना हो इसको इस बात का कि 1957 में 56-57 में जम्मू कश्मीर में जो है नाम नहाद जो थी असम्बली जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसे हिंदुस्तान के साथ इलाक़ाई करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में गया, करारदाद नंबर 122 मौजूद है, लिखी हुई है, किसी ने मिटाई नहीं है वो। उन्होंने हिंदुस्तान के उस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया, कहा यह राष्ट्रवादी का नेवल बदल नहीं है। ये आपने पहले मरहले में वो किया, अब आप आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाना चाहते हैं। इसलिए कि जो आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा सेटअप है ये जब तक मौजूद है मसला कश्मीर को ख़त्म नहीं कर सकता। ये आज़ादी का बेस कैंप है और कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की मौजूदगी में बना था। ऐलान आज़ाद कश्मीर 24 अक्टूबर 1947 को आया था। इस हवाले से मैं कौम को खबरदार करना चाहता हूँ। कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर या सीज़ ऐलान पर सिंधी का भी खून बहा है, पठान का भी है, पंजाबी का भी है, बलोची का भी है और आज़ाद कश्मीर के लोगों का भी है। और आज़ाद कश्मीर के लोगों का खून वो फाटा और बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो जम्मू में जो है वो शामिल रहा, खून उन्होंने भी दिया है। हम एक हैं। ये इमरान खान साहब ने 2015 में आज़ाद कश्मीर के एक रोज़नामे को इंटरव्यू दिया कि जी एक ही हाल है इसका, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, जम्मू लद्दाख हिंदुस्तान को दे दो, गिलगित आप कर लो और आज़ाद कश्मीर वैली को 2 ज़िलों को बनाकर जो है वो जो पुराने 2 ज़िले आपको अलग दो, उस पर तो हो गई है, अमल दरामद हो चुका, गिलगित पर भी उस तरफ भी। अब ये रहता है इसका पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे अपना नहीं, मैं तो ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, मुझे अपनी आंदा आने वाली नस्लों के बारे में जो उनके मफादात का ख्याल रखता हूँ, उनके एस्पिरेशन का, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसकी एस्पिरेशन का जो मैं ख्याल रख रहा हूँ। इस हवाले से मैं जो कहना चाहता हूँ 2021 का इलेक्शन जो है ये नल के टूटी डेवलपमेंट का नहीं, हमने बहुत डेवलपमेंट करा लिया आज़ाद कश्मीर में, कोई चीज़ में उसमें कमी नहीं छोड़ी हम। मैं मियां नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब का शुक्रगुजार हूँ, वैसे वज़ीर ख़ज़ाना जो उन्होंने वैसे वज़ीर आज़म शाहिद साहब ने 13th अमेंडमेंट में और मियां नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर को अपलिफ्ट करने के लिए जब 2016 को वैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये मसला मेरी बका का है, ये मेरी उमंगों का मसला है, मेरे बुजुर्गों की कुर्बानियों का मसला है। ये मैं उसको फरामोश नहीं कर सकता। ये कहा गया माजी को भूल जाए, आप भूल जाए ना, आपको क्या है, आप भूलते भूल जाए, हम तो नहीं भूलेंगे उसको, क्यों मैं भूलूंगा। जिन बातों का मैंने तज़किरा किया अगर हम भूल जाए, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा इस सरजमीन पर एशिया की या सब इसकी क्या नाम है साउथ एशिया में जो अपनी कुर्बानी को भूल जाए। इमरान खान साहब आप जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोग उसको पूरा नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल आपको सब जो मर्जी कर रहे हैं आप उल्टा भी लटक कर आ जाए, आप अपने इस नफा के एजेंडे पर कभी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते और हम रिजल्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ी है हमारा लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ, जो फख्र से कहता है कि मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। इसलिए ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बात नहीं हो सकती। और फिर ये उसमें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ आपके मकसद से ये निज़ाम जो पाकिस्तान में ये चलने वाला नहीं है, ये इस साल के अवाखिर तक ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हुआ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अबतरी फैलेगी अगर उनको मौका मिला। अवलन तो होगा नहीं, काले बर्फ पड़ती नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग,
कल परसों भी इजलास हुआ, वो भाई हो रही है आजाद कश्मीर के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग। ये करोड़ों रुपए किधर से आ गए, ये रेल पेल किधर से आ गई आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, ये कहां से आ रहे हैं पैसे, ये कौन दे रहा है? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दफ्तर इस्तेमाल हो रहा है, उसकी सरकारी रहायशगाह इस्तेमाल हो रही है। हमारे लिए पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म वो काबिल इज़्ज़त एहतराम है, लेकिन जो PTI के चेयरमैन ने वैसे तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो खिलवाड़ करना चाहते हैं वो नहीं होगा। इमरान खान साहब, आपको गलत लोगों से, आपको वो लोगों से पाला जो पड़ा, हम वो लोग नहीं हैं, आप हमें चबा नहीं सकते, ये मैं आपको साफ वाज़ेह करना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ऐसी नंगी जारियत, वो आप सबके लिए वज़ीर आज़म है, सबके, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मनसब को जो है वो मुतनाज़ा न बनाएं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। और यही बात जो है ये उस तरफ ही जाएगी। आपके हवाले से मैं वो बात करना नहीं चाहता जो उधर की और इधर की जो लीडरशिप जो सोचती है, जिसको अल्लाह ने सोचो विचार की सलाहियत दी है, जिनको दर्द दिल दिया, कि वो आपके बारे में क्या बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि आप और मोदी ने इकट्ठे मिलकर 5 अगस्त के मामले पर आपका टेस्ट अप्रूवल था। मैं आपको इल्ज़ाम लगाता हूँ, बरसरेआम लगाता हूँ आप पर, कि आप इस नापाक मनसूबे के अंदर हिस्सेदार हैं, शामिल हैं आप इसके अंदर, बिल्कुल शामिल हैं आप इसके अंदर। क्या किया आपने? हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा 43 ममालिक में गया, वो किधर गया? ये आपका वज़ीर ख़ारजा, ये एक अच्छा स्टोरी टेलर तो हो सकता है, बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है ये, लेकिन वैसे थे कश्मीर के सफ़ीर के, ये कहते हैं हमने, मैं कसम उठा कर कहता हूँ जो मुझे पैदा किए, 1% हुकूमत पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा का यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कश्मीरी के साथ उससे की थी, जो उससे हमायत की, 1% भी इनका ऐसा नहीं है। वो अपने ब्रसल में कश्मीर कौंसिल जो उसका, या जो कश्मीरी है उसका, उनका कंट्रीब्यूशन, डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है। ये जाए ना, अभी जो आपके खिलाफ करारदाद हुई थी, 2 मेंबरों ने आपकी हिमायत की है, 600 और कुछ ने आपकी मुखालफत की, जाए ना। ये जो अभी रिसेंट इशू हुआ है, नहीं जी, ये उस पर वो हवाले से जो है फराज के हवाले से, जाए ना, करे ना उधर जाकर, आप बताए ना आपकी कामयाब सफारतकारी कौन आपके साथ खड़ा है। आज 1 साल से फिर आपको ग्रे लिस्ट पर डाल, खुश बगले बजा रहे हैं, शुक्र है जी हमें ब्लैक लिस्ट नहीं किया। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है, क्या कोई आपका पता नहीं। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम ममालिक आपके साथ नहीं है, ये आपका अजीम हमसाया, वो आपने दोनों किश्ती पर दात रखी हुई है, अगला आपका टेलीफोन सुनना नहीं चाहता। और वो बशीर साहब हमारे कह रहे बेचारे, हो जी अच्छा नहीं सुनते हैं फ़ोन तो ना सुने जी, हम किसी फ़ोन के इंतजार, आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपने ज़बरदस्ती जाकर, आपको पूछा तक नहीं उसने, उसे भूटान को रखा उसके अंदर वो क्लाइमेट कंट्रोल में, आपको नहीं बुलाया उसने, और आप कह रहे मैं जी इधर मैंने 11 अरब जो है वो मैं दरख्त लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपकी किसी बात का कोई बात मुझे एतबार नहीं करता, आपकी कोई बात जो है ना, आपकी कोई वो है ही नहीं, आपकी ये साख ही नहीं आपकी। इस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मरीम नवाज साहबा और लीग की दूसरी जो टीम मरकज़ी क़यादत है वो आज़ाद कश्मीर आएगी, वो दौरा करेगी, और हम इस इलेक्शन को तक़सीम कश्मीर के एजेंडे के ख़िलाफ़ बयानिया बनाकर आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के पास ले जाएंगे, जिन पर हमें फ़ख्र है कि पिछले 73-74 साल से हमारी पुश्त के ऊपर खड़े में उनको सलाम पेश करता हूँ। और डायस्पोरा में लेकर जाऊँगा, मैं जगह जगह ले जाऊँगा, मैं इसको ये जाकर बाहर जाएगा, ये कश्मीर का सौदा करके बाहर वो उधर फिरेगा, ये सफारत खाने के बाहर से बाहर नहीं निकल सकेगा, ये सरकारी रहायशगाह से बाहर नहीं निकल सकेगा। वो मुझे पता है, ये अभी जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं उसके अंदर, यूरोप के अंदर, ये किस हमने बात अभी तक नहीं, हमें वो अपना मुल्क याद आ जाता है पाकिस्तान। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। ऐसा भी बता दें कि जो बात वज़ीर ख़ारजा ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की है कि जब तक 5 अगस्त के अहकाम वापस नहीं होंगे उस वक्त तक इंडिया से बात नहीं होगी, यही बात जो है महबूबा मुफ्ती और जो मकबूजा कश्मीर की जो कठपुतली क़यादत उसने किया, कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? कठपुतली क़यादत और हमारी वज़ारत ख़ारजा के बेन ये एक ही है। दफ़ा 370 जो है ये कश्मीरी गांव के धूल झोंकने के लिए थी, उसका राय शुमारी के निमल बदल कि जी यहाँ सदर रियासत भी है जी, यहाँ वज़ीर आज़म भी है। और 9 अगस्त 1953 को उसी वज़ीर आज़म को जो कहता था नेहरू के साथ तू बन शुदी तू तन शुदी, उसको हथकड़ियाँ लगाई गई थी 1953 9 अगस्त को। आप स्टेटस को बहाल करवाना चाहते हैं क्या? दफ़ा 370 जो है वो राय शुमारी का निमल बदल अगर है तो पता है
یہ تو محبوبہ مفتی اور عبداللہ فیملی جو ہے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے، یہ مجھے لگتا ہے گفتگار کانفرنس ایک ہی وہاں پر ہوئی ہے. میں گیا تھا ادھر وزارت خارجہ، ان کو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے کہ جی غلط ہو گیا ہے. کیا کریں؟ میں نے کہا کل بریفنگ آپ اس کی تجدید کریں. وہ آپ ہندوستان نواز لوگوں کی حمایت کرتے، یہ سارے گئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ کیا نام ہے، ایک سابق چیف منسٹر جو ہے فاروق عبداللہ، اور وہ جو دوسرا تھا غلام نبی آزاد، وہ مودی کا تھے، اس طرح کھڑے تھے. ان کی تائید کرتے ہیں آپ، ان کے باتوں کی تائید کرتے ہیں. اس سے بڑی زیادتی جن لوگوں نے اپنا خون بہایا کشمیر کے اندر شہداء کے ساتھ یا ان غازیوں کے ساتھ، یا میرے جو بیٹے بیٹیاں جو آج بھی جو جائے، اس سے بڑی غداری اور میں سمجھا زیادتی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں احتجاج نہیں جا رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں احتجاج نہیں جا رہے ہیں، اور دوسرے ساتھ میں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو مدعو بھی کیا گیا ہے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں جی بی والی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. نون لیگ کے اکثر جو لوگ ان کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پری پلان کوئی دھاندلی کا پلان بنایا گیا یا کیا صورتحال ہے؟ اور یہ جو ابھی آپ نے پہلے اسٹارٹ میں بیان دیا ہے تو یہ پہلے آپ کو بولنا چاہیے تھا، اب یہ آپ کو بیان سامنے کیوں آیا؟ ایسے یہ ہے کہ بس ان کا وہ کون ہے، نہ مجھے بلانے والے، مجھے بلایا ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ کاغذ بھی دکھا سکتا ہوں. تو میں نے جو آپ سے بات کی تھی، میں آمدن نہیں جا رہا اس نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ اذان ہوئی ہے، اس کا یہ زور کا یہی ٹائم ہے نا، یہ آپ عصر کے وقت نہیں دے سکتے یا فجر کے وقت نہیں دے سکتے، یہ 11 بجے نہیں دے سکتے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو دوسرا آپ نے جو کہا، ایک تو یہ تھا کہ احتجاجن نہیں، احتجاجن کیا کہ میرا جب نقشہ بدل دیا تو میں نے کیا جا کر اس نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں کرنا ہے. یہ پہلی بار میٹنگ میں ہمارے پاس آئے تھے موجود یوسف صاحب، ہم نے ان کو اپنی تجاویز دے دی تھی. ٹھیک ہے جی. اب جس شخص نے بلایا، جن حالات کے اندر بلایا، اس کے اندر جانا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کا مترادف ہے. ادھر ہاں جی بی والی صورتحال نہیں ہوگی جی. لوگ ادھر ادھر، یہاں پاکستان میں نہیں ہوتا. 2 ممبر گئے ٹوٹل ہمارے، بڑا زور لگانے کے باوجود 2 ہی گئے نا، اور کون گیا؟ پری پلان یہی ہے نا. پری پلان کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا. یہ کر رہے ہیں نا، پیسہ استعمال کر رہے ہیں، دوسرے ذرائع استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو رانگ نمبر ہے، اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں. پاکستان میں سے، پنجاب میں سے جو قاتل ہیں ان کو ضمانتوں پر رہا کروا کر بمبر کی طرف بھیجا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں. یہ بیٹھے ہیں سینئر وزیر صاحب ان کے حلقے میں. اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. تو باقی جی بی کی صورتحال آزاد کشمیر میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی. بڑا نازک وقت ہے، انتخابات بھی قریب ہے، اور ظاہر ہے آپ نے پہلے بھی خدشات کا اظہار کیا، بھاگ جو مداخلت کر رہا ہے اور الیکشن چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ نقشہ تفتیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ اسی طرح کا اسٹیٹس جی پی کا اسٹیٹس دینے جا رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب تک آزاد کشمیر کا یہ موجودہ سیٹ اپ قائم ہے، یہ بیس کام پہ تحریک آزادی کشمیر کا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اگر کرے گا تو اس کے لیے ہم پاکستان کی سرزمین بھی تنگ کر دیں گے. اگر اس نے یہ ناپاک کوشش کی، قبر تک پیچھا کریں گے اس کا، نہیں چھوڑیں گے اس کو. اگر میں یہ جو غداری کرنا چاہتا کشمیر میں، مجھے پتہ ہے اس کی بہت ساری باتوں کا. یہ کیا سمجھتا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ہم ناواقف ہیں. ہم مطلب ہے کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی وہ سڑک پر سے چل کر آئے ہوئے یہ سیاسی کارکن نسل در نسل ساتھ کر، جن کی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی منسلک ہے آزادی کی تحریک کے ساتھ. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ یہ نقشہ تو 6 مہینے 8 مہینے پہلے تبدیل ہوا، آپ بیٹھے رہے، بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، اب جب الیکشن قریب آیا آپ نے کوئی شروع کر دی. دوسری چیز یہ ہے کہ سرتاج عزیز کمیشن نے یہ صوبہ بنانے کی ساری تجویز کی تھی، اس وقت آپ نے کسی کو بغیرت نہیں کہا، اب آپ میڈیا میں آ کے ساری چیزیں کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، جس سے نقشبہ یہ بیٹھے ہیں، یہ طارق صاحب بیٹھے ہیں، اب ہر چیز جو ہے نا وہ باہر نہیں کی جاتی. کوئی چیزیں جو ہیں ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کوئی بات جو میرے پاس آئے گی براہ راست یا بلا واسطہ میں اس کو افشا نہیں کروں گا. طارق صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہندوستان کی بچائی بساط پر کیوں کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنی طرف اسٹرانگ ریزرویشن دی ان کو. مظفر آباد میں میٹنگ ہوئی تھی. یہ اب زیادہ بات اس کو پھر اور بات بن جاتی ہے. یہ ایک دو سرتاج عزیز صاحب کو بھی میں نے کہا آپ تاریخ کو مسخ مت کریں جی. سرتاج عزیز صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں، بزرگ آدمی ہیں، یہ نہیں ہوگا. رکھوا دیا ان سے، نہیں ہونے دیا. وہ ہوا نہیں نہ ہوا ان کے زمانے میں. تو اور کیا غلط تھا وہ؟ میں نے ان کو کہا نا کہ آپ کو کیا آپ فضول باتیں کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت میں آپ
राशुमारी की, आपकी राशुमारी को मानता कौन है वो? उनको मैंने कहा ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत होगी। जो आपको गुजरा हल्फ के बाद भी वो दूसरी जुबात में चले गए, तो उनसे निजी गुफ्तगू होती है तो कहते हैं कि फारूक हैदर एक डिक्टेटर था, रियाजुल मिला उसकी पार्टी सदर भी वजारत में छोड़ी पार्टी को अगर डिक्टेटर चलाया। माजी में आपने पार्टी से बात ये बाकी है, ये भी मुझे कहना है डिक्टेटर, उन दो को नजर आया मुझे डिक्टेटर। सबसे ज्यादा जिनको अकोमोडेट किया वो बात ये है कि वो है, अब मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता पहाड़ी की, बाकी उनको मैं हमारा वो गैस हो गए उसके बारे में शेर पढ़ता हूँ मैं। आफ्ताब ताज़ा पैदा बतर गेती से हुआ, आसमान टूटे हुए तारों को बातब का गए अल्लाह के वाले। सब कश्मीरी जो इस वक्त उस पार मोदी के मजालिम का सामना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर की क़यादत की तरफ। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अब इलेक्शन भी आ गए हैं, पाकिस्तान की क़यादत, कश्मीर की क़यादत आपस में, जैसे आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इमरान खान साहब पर आप तनकीद कर रहे हैं, वो भी इसी तरह बातें करते हैं, तो क्या कश्मीरी फिर किससे अपनी उम्मीद रखें इस सूरत हाल में? ये जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायदे के मुखालिफ ही लोग थे ना, कि नहीं थे? मुसलमान ही थे, बड़े खदावर लोग थे उनके खिलाफ। वो मौलाना आज़ाद ने क्या कहा, वो क्या किया, और बेशुमार लोग थे। ये दुनिया के अंदर होता है, एक बात। दूसरी आपने क्या बात की थी? हाँ, आपने बात की, मुझे किसी ने परसों पूछा तुम्हें कोई रिग्रेट्स है? मैंने कहा हाँ, 2 हैं। कहने क्या? मैंने कहा मेरी शदीद ख्वाहिश थी, इनसे 3 दफ़ा बात की कि कुरैशी साहब आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, इमरान खान साहब आपकी बात किसी ने सुनी, वो बात मेरी सुनी जाएगी, फारूक हैदर की नहीं, कश्मीरी की। हमने इनसे कहा कि आप हमें उसमें कम अज़ कम चलिए OIC में ऑब्जर्वर स्टेटस दिला देना कि इस कश्मीर हुकूमत को कश्मीरी की नुमाइंदा मान लिया जाए, इसको कि ये कश्मीरी को रिप्रेजेंट। मुझे नाम नहीं लेना चाहता, कल मैं बेचारों को हिंदुस्तान रगड़ेगा उधर। ज़ुमा के फ़ोन आए कि हम तो गिरफ्तार हैं आप। मैंने कहा जी यही बात, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, ये अगर आप ये रखें, मालिक बुज़दिल हैं, मालिक बुज़दिल हैं, मालिक बुज़दिल हैं, मेरे मालिक बुज़दिल हैं, मुझ पर एतबार नहीं करते, वो उनको यकीन नहीं है मेरे बारे में। यानी इससे ज़्यादा कश्मीरियों के साथ उनकी तौहीन और तज़ीक़ कोई नहीं हो सकती अगर उन पर एतबार न किया जाए। तो ये मुझे रिग्रेट एक, और दूसरा ये था मैं आज़ाद शहरी के ऐसे से अपनी माँ के घर जा सकूँ, श्रीनगर। ये मुझे रहेंगे, पता नहीं ज़िंदगी में मुझे ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने हर तरफ से कोशिश की है इसको रास्ता रोकने की, हर चीज़ का एक वक्त होता है। इस्तीफा नहीं होता, और इस्तीफे से कोई हाल होता, मैदान में रहना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको कहा गया है कि आप राजा फारूक हैदर को हरवा के आए तो आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। क्या बात करते हैं जी, क्या मतलब बिंदी तो क्या बिंदी का शोरबा। अलबत्ता मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे हैं, वो हर पार्टी मेरे खिलाफ इकट्ठी है, हम सबके खिलाफ हर पार्टी, ये नहीं मेरा, सबके ये जो खड़े सबके खिलाफ खड़ी हैं। हमने अपने कश्मीर दास की वजह से 73 सालों से कुर्बान किया, लेकिन कश्मीरी क़यादत, आज़ाद कश्मीरी क़यादत ने हमारे हकूक़ के लिए किस फोरम पर क्या क्या इक़्तिदार किए। एक तो ये सवाल है कि आपने क्या मतलब इस हवाले से। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी के इजलास में आप शरीक होते, वहाँ पर अस्करी क़यादत और तमाम जमातों की और पाकिस्तान की क़यादत वहाँ पर शिरकत करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि आप वहाँ पर अपना जो है ना वो मौक़िफ़ सारा बयान करते हैं। आपकी जो है ना वहाँ पर हिमायती हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे आपकी तायद करते हैं। इस हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये तासुर वज़ारत अमूर कश्मीर ने फैलाया, गिलगित के और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान एक तकसीम करवाई। एक मीटिंग 2019 में यहीं करीब हुई थी, एक जगह आप गुजरते होंगे उधर से, और फैसला हुआ जिसमें सारे स्टेक होल्डर मौजूद थे कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर की तरह का सेटअप दिया जाए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, कानून साज असम्बली और जो इख्तियार हो इस कश्मीर कौंसिल से भी छुटकारा, ये फैसला हुआ पहली मीटिंग में। और दूसरी मीटिंग में उसको रद्द करने की कोशिश की। मैं नाम नहीं लेता, मुझे बुलाकर कहा गया कि आपने सुबह नहीं मानना है। ये जो मुतलका लोग हैं उन्होंने कहा मुझे इससे कश्मीर के मसले को नुकसान होगा। मैंने कहा आपको पता मैंने पिछले दफे किया। तो हम ये कहते हैं कि गिलगित के लोगों को बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से भी ज़्यादा इख्तियार दिया जाए। हमने कभी उसकी मुखालफत नहीं की है, लेकिन यह है कि हम ये कहते हैं उनको इख्तियार देते वक्त कश्मीर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए, बिल्कुल उनको इख्तियार दें। गिलगित के जितने वसाइल हैं कुदरती, उस पर गिलगित के लोगों का हक तस्लीम किया जाए।
यहाँ ना बैठना पड़े। ये जो 7 दफ्तर है कि खाना खराब जो है, ये हमारा भी राज जिसको हमने ख़त्म किया कौंसल का, यहाँ से जाएँ वो गिलगित पे बैठ कर अपने फैसले करें। एक तो ये बात है। दूसरी आपने जो बात की थी, ये अदम एतमाद है हुकूमत पर, हुकूमत पाकिस्तान पर, कि आप मुझे बिठाकर कोई कल मुश्तरका लामिया जारी करें और कल जब मैं इख्तलाफ करूँगा आपने वो बाहर नहीं देना, आप नहीं दे सकते बाहर। कैसे देंगे कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने आपकी इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया, आप नहीं दे सकते बाहर। तो उस खजालत से बचने के लिए या उस तलखी से बचने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए जाने का फ़ायदा कोई, इमरान खान के साथ क्या मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बात करूँ भाई, उससे मैं क्रिकेट पर बात कर सकता हूँ कि बॉल टेम्परिंग कैसे होती है भाई। अब तो अमेरिकन दबाव के ऊपर, अब वो बात वही में आपका इंटरनेशनल एजेंडा जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट को, उस पर वो अमल दरामद करवाना चाहते हैं। मैं जाकर तो अंगूठा लगाऊंगा कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, हम नहीं लगाएंगे अंगूठा। ये जो पिछली मीटिंग थी उस पर भी मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ आपकी बातों को। उधर कोई वो मैदान तो नहीं है ना, वो तो कॉन्फ्रेंस है नहीं, वो खड़ा तो नहीं, कुश्ती तो नहीं करता। अफगानिस्तान के बारे में इंशाल्लाह बनाएगी। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं या हुकूमत बनाने के बाद कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता जो इजलास था, बजट इजलास से पहले आज़ाद कश्मीर की तमाम पोलिटिकल पार्टीज को दावत दी, आइए मिलकर इस मनसूबे को रोके। हर जमात वो छोड़े यार, किसकी बात करते, कौन है वो, मैं जानता ही नहीं उसको। बहुत शुक्रिया।